जी मैम सामने यस डॉक्टर सरिता मेहता जी विद्याधाम USA संस्था के प्रतिनिधि ने ये भारत की संस्कृति ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ बड़ा ही ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 15ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो उस विषय से इन्होंने जो प्रोग्राम इस तरह जी कि 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਓਕੀਨਾਵਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो मैं उस मद्देनज़र जो 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਆਵਰਨਵਿਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ तो शुरू करने वाले हैं जी अगे चलाने वाले तो सानू पता ही नहीं लग्या कि फिर कड़ी दे नाल कड़ी जुड़ती रही है। 28 जुलाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਦਿਵਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਲਗਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬें मैं विद्याधाम USA ਨਾਲ ਤਦ ਜੁੜੀ ਸੀ
कि मैं हिंदी उत्थे अमेरिका च भी हिंदी लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी आओ हिंदी सीखिए आओ पंजाबी सीखिए तो नाल ही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि मेरे इतिहास च भी संस्कृत ओदियां बुक्स है तो वो सिखाती रही। तो ਉਹਦੇ बढ़ावे ਲਈ ਅਸੀਂ छोटे फंक्शन करते हैं हर तरह के मंदिर होए चाहे गुरुद्वारे होन या कुछ भी होए अपनी परंपरा नाल जुड़े हुए उस तरह बनाने हैं ताकि साडी पूरी दी पूरी संस्था जुड़ी रहे और अगे जनरेशन बाहर जिन्हों प्रवास के विदेशों में अपनी संस्कृति की जड़ा मजबूत करने लई असीं काम कर रहे हैं। अवार्ड किहड़े शुरू किए हर साल तुसीं अवार्ड दिंदे हो? हाँ जी, सब तो पहला असीं वैसे अवार्ड भारतीय संस्कृत संवाहक अवार्ड हमेशा देते हैं और ये वृक्ष जिहड़ा वृक्ष मित्र का अवार्ड है ये पहली अवार्ड इन्हां दी उहदे नाल करके प्रेरणा दे नाल वृक्ष रोपण का पहली बार किया, जबकि पेड़ वैसे लगाते रहते सी पर उसका अवार्ड कोई नहीं किया सी। पौधा पकड़ ले दिया बगैर यस गुड। आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। चेयर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप थोड़ा रोको। तो कम हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो उनको मतलब एक माध्यम बनाने के लिए इन्होंने अपनी बुक में रोमन्स इंग्लिश रोमन में भी एक्सप्लेन की हिंदी, ताकि जिसको हिंदी नहीं आती उसको इंग्लिश में मैं हिंदी समझा दूंगा। ठीक है। अब हमारे पास है के शारदा जो समाज की भी इतनी सेवा कर रहे थे। अंतिम पड़ाव पे जब कोविड हुआ शायद बहुत सी एक्टिविटी तभी शुरू हुई, उस समय हमें अपने आप को जानने का भी वक्त मिलता है। पहला सेहत नहीं और मेरे दोस्तों बड़े भाइयों की विज साहब के कहने पे उसको किया था, तो सर इसका सबसे पहले आई थी दिव्य सरिता। ये है कि हम अपने आप को अपने से कैसे जुड़ते हैं, पर उसके बाद ऐसा लगता है कि हम तो यही जुड़े रह गए। खिड़की में से बैठ के जब पंछी उड़ते देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, हमारी एक उन्मुक्त उड़ान भी होनी चाहिए। और ये उड़ान हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है, हर एक की अपनी अपनी आत्मा की उड़ान होती है जिसका किया। और इसका जो रोमन उसका लिखा गया था ताकि ये मित्र हमारे, क्योंकि इनको भारतीय संस्कृत समाहक को देना था तो वृक्ष मित्र का अवार्ड भी इनको देते हुए मुझे गर्व है। क्योंकि मैं भारत को वहाँ तक ले गई थी, वहाँ तक फैलाती हूँ, आती हूँ, फिर थोड़ा पानी वहाँ भी भराती हूँ, तो यहाँ भी अपने ये मायका है मेरा। तो इसी वजह से ये सारा परिवार बना है। और उसी में एक परंपरा शुरू से रही है कि भारतीय संस्कृति विरासत को किस तरह से हम आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा सके, यही हम कार्य वहाँ करते हैं। जैसे मुझे कहते मैं हिंदी में बात कर, विदेशी प्रोफेशनल राइटर्स ने लिखा इंग्लिश बुक छपी, तो 2020 में वो बुक मेरे पास कहीं फेसबुक से पब्लिश एडवर्टाइजमेंट होते हो कमर्शियल में मैं देखी, तो मैं सोचा मैं तो 2009 में वहाँ चला गया था और मैंने तो अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट कर लिया, तो मैंने तो किताब लिखी ही नहीं। ये तो थोड़े दिन के लिए कोई गया उसकी किताब लिख दी है फॉरेन राइटर, क्योंकि याद है क्या ना इंग्लिश की बुक जो इंटरनेशनल राइटर क्रेज है कि वही प्रसिद्ध होते हैं। हमारे हिंदी को तो इंटरनेशनल पे जैसे हमें सेकंड ग्रेड समझ लिया जाता है। तो मैं बोला असली तो मैं 2009 में ये चीज रिसर्च कर आया था, तो मैं इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से मेरे कभी कभी रेडियो प्रोग्राम आते रहते हैं समाज सेवा के ऊपर, तो मैंने वहाँ बात की, तो उन्होंने मुझे 8 मिनट का स्लॉट 10 मिनट का स्लॉट दिया इसके ऊपर बोलने का। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं 8 मिनट में मैं इतना जो सब कुछ समझा जाऊंगा, तो 10 मिनट का स्लॉट मिला था, तो 8 मिनट में ही मैंने वो समाप्त कर दिया अपना जो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम।
तो जब मैंने खुद सुना तो मैं बोला ये तो किताब मैंने 8 मिनट में लिख दी। जो बात ये जो वोकेशन प्रोफेशन मिशन और पैशन 4-5 संगम है बस। 100 साल से अधिक लंबे समय तक खुशहाल जीवन जीने के लिए भारतीय और जापानी रहस्यों का संगम है उसमें, जो सबके बहुत काम है। धन्यवाद। गो ग्रीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी हैं। 210 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय माई ट्री डे के रूप में इसको शुरू किया था, और ये उसके पर सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करने वाले एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नवांशहर जिला और बहुत अच्छी जगह का नाम है शहीद भगत सिंह नगर से। प्रत्येक व्यक्ति को स्वैच्छिक वृक्षारोपण और वृक्ष देखभाल से जोड़ने के लिए अभियान चलाना पंजाब भारत से परे पूरे विश्व में सफलतापूर्वक पौधारोपण बढ़ाने में सफल प्रयत्न कर रहे हैं। इनके बारे में कहा एक कनाडा के न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले छपा था। अश्विनी जोशी जी, वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सनैलिटीज पब्लिश्ड इन कनाडा, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, उन्होंने ये कहा था वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सनैलिटी। बड़ा अच्छा लगा, मैंने आर्टिकल पढ़ा और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनसे अनुरोध करूंगी कि आइए अपना बयान कुछ पर्यावरण विषय पे मेरे साथ अपने अनुभव साझे किए, तो उन्होंने विचार बनाया कि हम चंडीगढ़ से जो अंतर्राष्ट्रीय मेरा वृक्ष दिवस का अभियान है जो उसको बल देंगे, तो इन्होंने ये अपने आपके सहयोग से जो आज का कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए कम शब्दों में बोलते हुए मैं सारांश रखूंगा कि 2009 में मैं अपने मर्चेंट नेवी पेशेवश जापान गया, और मुझे जब भी मैं विदेशों में जाता था तो मैं बड़े क्लबों में या बड़े बड़े मॉल्स में जाने की बजाय मैं मेन शहर से, पोर्ट सिटी से 35, 40, 50 किलोमीटर, जो हर जगह गांव तो होते ही हैं, जॉर्ज अमेरिका सब में गांव होते हैं, तो मैं उनके रूरल सबर्बन एरिया में निकल जाता था, क्योंकि असली देश तो गांव में ही पता जाके चलता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है। बड़े बड़े जो मेट्रोज में वो तो एक जैसे ही होते हैं। तो इसी कड़ी में चलते मैं ओकिनावा शहर है जापान का, वहां गया, क्योंकि वो प्रसिद्ध था कि वहां के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं, दुनिया में रिकॉर्ड है उसका। तो उसके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटी ने शोध भी किया था। तो मैं जब खुद वहां गया तो मैं सोचा कि मैं वहां के बुजुर्गों से मिलूं और इसके बारे में कुछ जानूं, क्योंकि मैं भी लंबा जीना चाहता हूं, हर व्यक्ति लंबा जीना चाहता है। और फिर मैं फॉरन से आके थोड़ा बहुत लिखता रहता था न्यूज़पेपर में, एज ए गेस्ट आर्टिकल या जो लेटर आर्ट होते हैं वो लिख देता था, कि चलो शौक भी था और वो इंफॉर्मेशन दूसरों के काम भी आती है। तो एक सेंटेंस में मैं बोलूंगा जो मैंने वहां पाया। उनका कहना था कि 50 साल अपने लिए जीते, उसके बाद की जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं, ये हमारे लंबे जीने का राज है। हम चाहे संख्या में कम होंगे, लेकिन हमारा जो मिशन है वो बहुत ग्रेट है। तो उस मिशन को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में एक पूरी इंटरनेशनल हस्ती, जिन्होंने गो ग्रीन के नाम से एक पूरे विश्व में कैंपेन चला रखी है, श्री अश्विनी जोशी जी, इनके लिए दोस्तों, जब आप इनके बारे में जानेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अब तो सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि माता के नाम वृक्ष लगाओ, परिवार के नाम लगाओ। वृक्षों की कितनी महत्ता होनी शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में विद्या धाम की संस्थापिका डॉक्टर सरिता मेहता जी,
जो कवित्री भी हैं, साहित्यकार भी हैं, प्रज्ञाता भी हैं, कलाकार भी हैं, और इनके 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत योगदान है। नवगति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव नव नभ के नव विहग वृंद के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर। अश्विनी जोशी जी के बाद में अभी भी हम सबको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम का अब शुरुआत दीपशिखा से शुरू करते हैं। तो दीपशिखा के लिए मैं अश्विनी जी को बुलाती हूँ, प्लीज आइए। और हमारे माननीय ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾ ਦੋ चलो आप ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਖਿੱਚੋ ਇੱਕ बच्चे सामने को हेलो बेटे यहाँ